زبور چوتھی کتاب اور اس کا 100واں باب جو 5 آیات پر مشتمل ہے۔ شکر گزاری کا مزمور۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑے ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ زبور چوتھی کتاب اور اس کا 103 باب جو 22 آیات پر مشتمل ہے۔ داؤد کا مزمور۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ تو عقاب کی مانند از سر نو جوان ہوتا ہے۔ خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے، ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے، کیونکہ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے۔ اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں۔ انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے، وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں، اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دیکھے گی۔ لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے، یعنی ان پر جو اس کے عہد پر قائم رہتے ہیں اور اس کے قوانین پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں۔ خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے۔ اے خداوند کے فرشتوں، اس کو مبارک کہو، تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو۔ اے خداوند کے لشکروں، سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے خادم ہو اور اس کی مرضی بجا لاتے ہو۔ اے خداوند کی مخلوقات، سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے تسلط کے سب مقاموں میں ہو۔ اے میری جان، تو خداوند کو مبارک کہہ۔ زبور چوتھی کتاب اور اس کا 104 باب جو 35 آیات پر مشتمل ہے۔ اے میری جان، تو خداوند کو مبارک کہہ۔ اے خداوند میرے خدا، تو نہایت بزرگ ہے، تو حشمت اور جلال سے ملبس ہے، تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے۔ تو اپنے بالا خانوں کے شہتیر پانی پر ٹکاتا ہے، تو بادلوں کو اپنا رتھ بناتا ہے، تو ہوا کے بازوؤں پر سیر کرتا ہے، تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو
आग के शोले बनाता है। तूने जमीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया ताकि वो कभी जुम्बिश न खाए। तूने उसको समुंदर से छुपाया जैसे लिबास से। पानी पहाड़ों से भी बुलंद था, वो तेरी झिड़की से भागा। वो तेरी गर्ज की आवाज से जल्दी जल्दी चला, उस जगह पहुंच गया जो तूने उसके लिए तैयार की थी। पहाड़ उभर आए, वादियां बैठ गईं। तूने हद बांध दी ताकि वो आगे ना बढ़ सके और फिर लौटकर जमीन को ना छुपाए। वो वादियों में चश्मे जारी करता है जो पहाड़ों में बहते हैं। सब जंगली जानवर उनसे पीते हैं। गोरखर अपनी प्यास बुझाते हैं। उनके आसपास हवा के परिंदे बसेरा करते और डालियों में चहचहाते हैं। वो अपने बालाखानों से पहाड़ों को सैराब करता है। तेरी सनतों के फल से जमीन आसूदा है। वो चौपायों के लिए घास उगाता है और इंसान के काम के लिए सब्जा, ताकि जमीन से खुराक पैदा करे। और मैं जो इंसान के दिल को खुश करती है, और रोगन जो उसके चेहरे को चमकाता है, और रोटी जो आदमी के दिल को तवानाई बख्शती है। खुदावंद के दरख्त शादाब रहते हैं, यानी लुबनान के देवदार जो उसने लगाए, जहां परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं। सनोबर के दरख्तों में लकलक का बसेरा है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए हैं। चट्टानें साफानों की पनाह की जगह हैं। उसने चांद को जमानों के इम्तियाज के लिए मुकर्रर किया। आफताब अपने गरूब की जगह जानता है। तू अंधेरा कर देता है तो रात हो जाती है, जिसमें सब जंगली जानवर निकल आते हैं। जवान शेर अपने शिकार की तलाश में गरजते हैं और खुदा से अपनी खुराक मांगते हैं। आफताब निकलते ही वो चल देते हैं और जाकर अपनी मांदों में पड़ रहते हैं। इंसान अपने काम के लिए और शाम तक अपनी मेहनत करने के लिए निकलता है। ऐ खुदावंद, तेरी सनतें कैसी बेशुमार हैं। तूने ये सब कुछ हिकमत से बनाया। जमीन तेरी मखलूकात से मामूर है। देखो ये बड़ा और चौड़ा समुंदर, जिसमें बेशुमार रेंगने वाले जानदार हैं, यानी छोटे और बड़े जानवर। जहाज इसी में चलते हैं। इसी में लोयातान है जिसे तूने इसमें खेलने को पैदा किया। इन सब को तेरा ही आसरा है, ताकि तू उनको वक्त पर खुराक दे। जो कुछ तू देता है ये ले लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और ये अच्छी चीजों से सेर होते हैं। तू अपना चेहरा छुपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं। तू इनका दम रोक लेता है और ये मर जाते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं, और तू रूए जमीन को नया बना देता है। खुदावंद का जलाल अबद तक रहे। खुदावंद अपनी सनतों से खुश हो। वो जमीन पर निगाह करता है और वो कांप जाती है। वो पहाड़ों को छूता है और उनसे धुआं निकलने लगता है। मैं उम्र भर खुदावंद की तारीफ गाऊंगा जब तक मेरा वजूद है। मैं अपने खुदा की मदहसराई करूंगा। मेरा ध्यान उसे पसंद आए। मैं खुदावंद में शादमान रहूंगा। गुनहगार जमीन पर से फना हो जाएं और शरीर बाकी ना रहें। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह। खुदावंद की हम्द करो। ज़बूर 5वीं किताब और उसका 113 बाब, जो 9 आयात पर मुश्तमिल है। खुदावंद की हम्द करो। ऐ खुदावंद के बंदो, हम्द करो। खुदावंद के नाम की हम्द करो। अब से अबद तक खुदावंद का नाम मुबारक हो। आफताब के तुलू से गुरूब तक खुदावंद के नाम की हम्द हो। खुदावंद सब कौमों पर बुलंदो बाला है। उसका जलाल आसमान से बरतर है। खुदावंद हमारे खुदा की मानिंद कौन है, जो आलमे बाला पर तख्त नशीन है, जो फरोतनी से आसमान व जमीन पर नजर करता है। वो मिस्कीन को खाक से और मुख्ताज को मजबले पर से उठा लेता है, ताकि उसे उमरा के साथ, यानी अपनी कौम के उमरा के साथ बिठाए। वो बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है।
खुदावंद की हमद करो। ज़बूर 5वीं किताब और उसका 117वां बाब जो 2 आयात पर मुश्तमिल है। ए कौमों, सब खुदावंद की हमद करो। ए उम्मतों, सब उसकी सिताइश करो, क्योंकि हम पर उसकी बड़ी शफकत है और खुदावंद की सच्चाई अबदी है। खुदावंद की हमद करो। ज़बूर 5वीं किताब और उसका 134 बाब जो 3 आयात पर मुश्तमिल है। मालूत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। ए खुदावंद के बंदो, आओ सब खुदावंद को मुबारक कहो। तुम जो रात को खुदावंद के घर में खड़े रहते हो, मकदिस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदावंद को मुबारक कहो। खुदावंद जिसने आसमान और जमीन को बनाया, सयून में से तुझे बरकत बख्शे। ज़बूर 5वीं किताब और उसका 135 बाब जो 21 आयात पर मुश्तमिल है। खुदावंद की हमद करो, खुदावंद के नाम की हमद करो। ए खुदावंद के बंदो, उसकी हमद करो। तुम जो खुदावंद के घर में, हमारे खुदा के घर की बारगाहों में खड़े रहते हो, खुदावंद की हमद करो, क्योंकि खुदावंद भला है। उसके नाम की मदह सराई करो कि ये दिल पसंद है। क्योंकि खुदावंद ने याकूब को अपने लिए और इसराइल को अपनी खास मिल्कियत के लिए चुन लिया है। इसलिए कि मैं जानता हूं कि खुदावंद बुजुर्ग है और हमारा रब सब माबूदों से बालातर है। आसमान और जमीन में, समुंदर और गहराओं में खुदावंद ने जो कुछ चाहा वही किया। वो जमीन की इंतहा से बुखारात उठाता है, वो बारिश के लिए बिजलियां बनाता है, वो अपने मखजनों से आंधी निकालता है। उसी ने मिस्र के पहलोठों को मारा, क्या इंसान के क्या हैवान के। ए मिस्र, उसी ने तुझ में फिराउन और उसके सब खादिमों पर निशान और अजायब जाहिर किए। उसने बहुत सी कौमों को मारा और जबरदस्त बादशाहों को कत्ल किया। अमूरियों के बादशाह सहून को और बसन के बादशाह ओज को और कनान की सब मुमलिकतों को और उनकी जमीन मिरास कर दी, यानी अपनी कौम इसराइल की मिरास। ए खुदावंद, तेरा नाम अबदी है और तेरी यादगार ए खुदावंद पुश्त दर पुश्त कायम है। क्योंकि खुदावंद अपनी कौम की अदालत करेगा और अपने बंदों पर तरस खाएगा। कौमों के बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं और उनके मुंह में सांस नहीं। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानिंद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। ए इसराइल के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ए हारून के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ए लावी के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ए खुदावंद से डरने वालों, खुदावंद को मुबारक कहो। सयून में खुदावंद को मुबारक कहो। वो यरूशलेम में सकूनत करता है, खुदावंद की हमद करो। ज़बूर 5वीं किताब और उसका 145 बाब जो 21 आयात पर मुश्तमिल है। दाऊद का मजमूर मदहा। ए मेरे खुदा, ए बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा और अब्दुलाबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुलाबाद तेरे नाम की सिताइश करूंगा। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है। उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूंगा और लोग तेरी कुदरत के होलनाक कामों का जिक्र करेंगे और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूंगा। वो तेरे बड़े एहसान की यादगार का बयान करेंगे और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। खुदावंद रहीम और करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। ए खुदावंद, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस
تجھے مبارک کہیں گے۔ وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کرے۔ تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت۔ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبدالآباد مبارک کہے۔ زبور 5ویں کتاب اور اس کا 146 باب جو 10 آیات پر مشتمل ہے۔ خداوند کی حمد کرو، اے میری جان خداوند کی حمد کر۔ میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا۔ جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ نہ عمرہ پر بھروسہ کرو نہ آدم زاد پر، وہ بچا نہیں سکتا۔ اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے، جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، جو مظلوموں کا انصاف کرتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے۔ خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے لیکن شریروں کی راہ ٹیڑھی کر دیتا ہے۔ خداوند ابد تک سلطنت کرے گا، اے صیون تیرا خدا پشت در پشت۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 5ویں کتاب اور اس کا 147 باب جو 20 آیات پر مشتمل ہے۔ خداوند کی حمد کرو، کیونکہ خدا کی مدح سرائی کرنا بھلا ہے، اس لیے کہ یہ دل پسند اور ستائش زیبا ہے۔ خداوند یروشلیم کو تعمیر کرتا ہے، وہ اسرائیل کے جلا وطنوں کو جمع کرتا ہے، وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے۔ وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان سب کے نام رکھتا ہے۔ ہمارا خداوند بزرگ اور قدرت میں عظیم ہے، اس کے فہم کی انتہا نہیں۔ خداوند حلیموں کو سنبھالتا ہے، وہ شریروں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ خداوند کے حضور شکر گزاری کا گیت گاؤ، ستار پر ہمارے خدا کی مدح سرائی کرو، جو آسمان کو بادلوں سے ملبس کرتا ہے، جو زمین کے لیے مین تیار کرتا ہے، جو پہاڑوں پر گھاس اگاتا ہے، جو حیوانات کو خوراک دیتا ہے اور کوے کے بچوں کو جو کائیں کائیں کرتے ہیں۔ گھوڑے کے زور میں اس کی خوشنودی نہیں، نہ آدمی کی ٹانگوں سے اسے کوئی خوشی ہے۔ خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں۔ اے یروشلیم خداوند کی ستائش کر، اے صیون اپنے خدا کی ستائش کر، کیونکہ اس نے تیرے پھاٹکوں کے بینڈوں کو مضبوط کیا ہے، اس نے تیرے اندر تیری اولاد کو برکت دی ہے۔ وہ تیری حدود میں امن رکھتا ہے، وہ تجھے اچھے سے اچھے گیہوں سے آسودہ کرتا ہے۔ وہ اپنا حکم زمین پر بھیجتا ہے، اس کا کلام نہایت تیز رو ہے۔ وہ برف کو اون کی مانند گراتا ہے اور پالے کو راکھ کی مانند بکھیرتا ہے۔ وہ یخ کو لکموں کی مانند پھینکتا ہے، اس کی ٹھنڈ
कौन सह सकता है। वो अपना कलाम नाजिल करके उनको पिघला देता है। वो हवा चलाता है और पानी बहने लगता है। वो अपना कलाम याकूब पर जाहिर करता है और अपने आईनो अहकाम इसराइल पर। उसने किसी और कौम से ऐसा सलूक नहीं किया और उसके अहकाम को उन्होंने नहीं जाना। खुदावंद की हम्द करो। ज़बूर 5वीं किताब और उसका 148 बाब जो 14 आयात पर मुश्तमिल है। खुदावंद की हम्द करो। आसमान पर से खुदावंद की हम्द करो। बुलंदियों पर उसकी हम्द करो। ऐ उसके फरिश्तों, सब उसकी हम्द करो। ऐ उसके लश्करों, सब उसकी हम्द करो। ऐ सूरज, ऐ चांद, उसकी हम्द करो। ऐ नूरानी सितारों, सब उसकी हम्द करो। ऐ फलकुल इफलाक, उसकी हम्द करो। और तू भी ऐ फिजा पर के पानी, ये सब खुदावंद के नाम की हम्द करे, क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए। उसने इनको अब्दुलाबाद के लिए कायम किया है। उसने अटल कानून मुकर्रर कर दिया है। जमीन पर से खुदावंद की हम्द करो। ऐ अजदहाओ और सब गहरे समुद्रों, ऐ आग और ओलो, ऐ बर्फ और कोहर, ऐ तूफानी हवा जो उसके कलाम की तामील करती है। ऐ पहाड़ों और सब टीलों, ऐ मेवादार दरख्तों और सब देवदारों, ऐ जानवरों और सब चौपायों, ऐ रेंगने वालों और परिंदों, ऐ जमीन के बादशाहों और सब उम्मतों, ऐ उमरा और जमीन के सब हाकिमों, ऐ नौजवानों और कमवारियों, ऐ बुढ़ों और बच्चों, ये सब खुदावंद के नाम की हम्द करे, क्योंकि सिर्फ उसी का नाम मुमताज है। उसका जलाल जमीन और आसमान से बुलंद है और उसने अपने सब मुकद्दसों यानी अपनी मुकर्रब कौम बनी इसराइल के फख्र के लिए अपनी कौम का सींग बुलंद किया। खुदावंद की हम्द करो। ज़बूर 5वीं किताब और उसका 149 बाब जो 9 आयात पर मुश्तमिल है। खुदावंद की हम्द करो। खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ और मुकद्दसों के मजमे में उसकी मदह सराई करो। इसराइल अपने खालिक में शादमान रहे। फरजंदाने सयून अपने बादशाह के सबब से शादमान हो। वो नाचते हुए उसके नाम की सिताइश करें। वो दफ और सितार पर उसकी मदह सराई करे, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से खुशनूद रहता है। वो हलीमों को निजात से जीनत बख्शेगा। मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें। वो अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सराई करें। उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में दोधारी तलवार हो, ताकि कौमों से इंतकाम ले और उम्मतों को सजा दे। उनके बादशाहों को जंजीरों से जकड़ें और उनके सरदारों को लोहे की बेड़ियां पहनाएं, ताकि उनको वो सजा दें जो मरकूम है। उसके सब मुकद्दसों को ये शर्फ हासिल है। खुदावंद की हम्द करो। ज़बूर 5वीं किताब और उसका 150 बाब जो 6 आयात पर मुश्तमिल है। खुदावंद की हम्द करो। तुम खुदा के मक़दिस में उसकी हम्द करो। उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो। उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो। उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हम्द करो। नरसिंगे की आवाज के साथ उसकी हम्द करो। बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो। दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो। तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो। बुलंद आवाज झांझ के साथ उसकी हम्द करो। जोर से झनझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफिस खुदावंद की हम्द करे। खुदावंद की हम्द करो।